Jai Hind. In English as well as in Hindi. I would now hand over the mic to DGMO. Ladies and gentlemen, Jai Hind and a very good morning to all of you. It has been a matter of serious concern that there has been continuing and increasing infiltration by terrorists across the line of control in Jammu and Kashmir. This is reflected in the terrorist attacks at Poonch and Uri on 11th and 18th of September respectively. Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. During these terrorist attacks and infiltration attempts, we have recovered items including global positioning systems and stores which have had Pakistani markings. Further, captured terrorists hailing from Pakistan or Pakistan-occupied Kashmir have confessed to their training and arming in Pakistan or territory under the control of Pakistan. The matter has been taken up at the highest diplomatic levels and the military levels at regular times. India has actually also offered consular access to the apprehended terrorists to Pakistan to verify their confessions. Furthermore, we had proposed that fingerprints and DNA samples of terrorists who had been killed in the Uri and Poonch encounters can also be made available to Pakistan for their investigations. Despite our persistent urging that Pakistan respect its commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India, there has been no let-up in infiltration or terrorist actions inside our territory. If the damage was limited, it has been primarily due to the efforts of the soldiers of Indian Army who are deployed in a multi-tier counter-infiltration grid, and most of the infiltration bids have been foiled at those locations. The Indian Armed Forces have been extremely vigilant in the face of continuing threat. Now, based on very specific and credible information which we received yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian Armed Forces are fully prepared for any contingency that may arise. I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns and also shared with him the operations we had conducted last night. It is India's intention to maintain peace and tranquility in the region, but we can certainly, in line with Pakistan's commitment made in January 2004, not to allow its soil or territory under its control for any terrorist activities against India, we expect the Pakistan Army to cooperate with us
with a view to erase this menace of terrorism from our region. Thank you very much. आप इस वक्त की सबसे देवियों और बड़ी सज्जनों, खबर, भारत ने जय बीती हिंद। रात सर्जिकल स्ट्राइक की है। आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश भारत की ओर से बीती रात ही शुरू हो चुकी है। कि पिछले कुछ समय में जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ की बढ़ोतरी हुई है। 11 और 18 सितंबर 2016 को पुंछ और उरी के अंदर हुए आतंकवादी हमले इसकी एक मिसाल हैं। ऐसी घुसपैठ की तकरीबन आतंकवादियों द्वारा 20 कोशिशें भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल या उसके नजदीक उनको नकारा किया गया है। इन घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के दौरान मिला सामान और सामग्री, जिसमें शामिल है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये साफ जाहिर करते हैं कि उनके अंदर पाकिस्तानी चिन्ह हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं, उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। इस मुद्दे को हमने राजनीतिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर के ऊपर हमेशा पाकिस्तान के साथ समय समय के ऊपर अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते रहे हैं। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरी के अंदर मारे गए उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए न इस्तेमाल करे, जैसा कि उसने अपना जनवरी 2004 में आश्वासन दिया था हमें कि अपनी मिट्टी को वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और घुसपैठ और आतंकवादियों के घटनाएं बढ़ोतरी पे रही हैं। अगर हम अपना नुकसान कम करने में सफल रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है, भारतीय सेना के सैनिक जो कि एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर तैनात हैं, जिन्होंने कि इन घुसपैठियों को रोककर उनकी आतंकवादी डिजाइन को सफल न होने देने की क्षमता रखी है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी।
हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। We will not be taking any questions at the moment, but during the course of the day, we will be providing more information to you as more information becomes available to us. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी जानकारी। पाकिस्तान में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बीती रात एलओसी के पार भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। घुसपैठ को रोकने के लिए यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने यह साफ किया कि आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। एलओसी के नजदीक जो लॉन्च पैड्स है वहां से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। हमारे पास पुख्ता जानकारी थी कि भारत में बड़े हमले की योजना इन आतंकियों की ओर से बनाई जा रही है, जिसके बाद इन आतंकियों को टारगेट बनाकर भारत की ओर से बीती रात सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें आतंकी और उनके मददगार मारे गए हैं। ऐसी जानकारी भारत को मिल चुकी है। आतंकी और उनके मददगारों को मारा गया है सर्जिकल स्ट्राइक में। बहुत बड़ी खबर इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आ रही है कि भारत की ओर से बीती रात आतंकियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। खबर मिली थी कि एलओसी के नजदीक लॉन्च पैड में कई आतंकी हैं जो कि भारत में घुसपैठ करने वाले हैं और भारत में बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद भारत की ओर से यह ऑपरेशन चलाया गया, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरे के अंदर मारे गए उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए न इस्तेमाल करे, जैसा कि उसने अपना जनवरी 2004 में आश्वासन दिया था हमें कि अपनी मिट्टी को वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और घुसपैठ और आतंकवादियों के घटनाएं बढ़ोतरी पे रही हैं। अगर हम अपना नुकसान कम करने में सफल रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है, भारतीय सेना के सैनिक जो कि एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर तैनात हैं, जिन्होंने कि इन घुसपैठियों को रोककर उनके आतंकवादी डिजाइन को सफल न होने देने की क्षमता रखी है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ
कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें। तो डीजीएमओ ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी जानकारियां दी, वो आपने सुनी। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ अनिल कौल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता सुमित भी हमारे साथ है। लेकिन अनिल जी, पहले आपसे मेरा सवाल यह है कि भारत ने बीती रात सर्जिकल स्ट्राइक की है आतंकी ठिकानों पर, जिसमें कई आतंकी ढेर हुए हैं। ये जानकारी डीजीएमओ दे रहे हैं। किस तरह का यह ऑपरेशन रहा हो सकता है? अब तक बहुत ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन किस तरह से ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, बड़ा क्लियर कट है। ये बहुत दिन पहले से होना था और इसकी जैसे उनने उस दिन, आपको याद है, जो डीजीएमओ ने ब्रीफिंग ली थी एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, तो ये कल रात का टाइम दिया गया होगा और जगह ढूंढ ली गई होगी और वहां पे ये प्लानिंग चली चलती थी। या तो ये हेलीकॉप्टर से इंसर्ट हुए या फिर ये पैदल इंसर्ट हुए हैं। जैसे भी इंसर्ट हुए हैं, इनको सही जगह पता थी और ये बहुत दिन से ओवरड्यू था और मेरे ख्याल में एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। और हमें जो स्पेशल फोर्सेस के जिन्होंने पार्ट लिया है उनको शाबाश देनी चाहिए और काबिल तारीफ है कि हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। बिल्कुल, पूरा देश उन सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम करेगा जिन्होंने एक बड़ी आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया, उनके ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किए, आतंकियों का खात्मा किया। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। एक कड़ा फैसला भारत ने लिया कि अगर एक बार फिर से भारत पर हमले की योजना बनाई जा रही है तो हम इस अब मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए भारत ने फैसला लिया कि बीती रात सर्जिकल स्ट्राइक किए जाए। और क्या डिटेल्स इस खबर पर आपके पास है? देखिए, निश्चित तौर पर तानिया, अब जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकल मूव हमारा भारत का हुआ है कि पहले हम डिफेंसिव रहा करते थे इन मुद्दों के ऊपर, लेकिन भारत अब लगातार इस मामले में ऑफेंसिव हो रहा है। और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकल जो स्ट्राइक की बात की जा रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे भारत को भी लगातार कि जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं टेररिस्ट के, वो लगातार एक्टिव हो रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि दोबारा से उरी के अटैक के बाद कई बार कि दूसरे अटैक्स या फिर दूसरी ऐसी चीजों को अंजाम दिया जाए, इन्फ्लेटेशन की जाए, ताकि भारत को और नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से रणनीति भारत ने बनाई, ना सिर्फ कूटनीतिक तौर पर यानी इंटरनेशनल स्तर के ऊपर, बल्कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात की गई है, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत अब ना सिर्फ इस मुद्दों के ऊपर ना सिर्फ अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, बल्कि अगर ऐसे किसी भी मुद्दे को होता है तो उसको इंटरनेशनल फोरम पर, प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए तैयार है। अनिल जी, भारत ने पहले ही कड़ा संदेश दिया था कि डिप्लोमैटिकली तो हम आपको हैंडल करेंगे, लेकिन अगर वक्त आया और आपने हमारे देश पर टेढ़ी नजर बनाए रखी तो उसका भी जवाब देना हम जानते हैं, और वो करके हमने दिखाया है। अनिल जी, बिल्कुल, ये एक बहुत ओवरड्यू, मैं पहले भी बोला, ये बहुत ओवरड्यू एक्शन था और हमने जिसे कहते हैं कई बारी संयम बरता है, बट इस बारी संयम बरतने के भी उनको सबक सिखाया गया। प्लीज नोट कि उन्होंने ये भी बोला है कि ये कार्रवाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ थी और उनको नष्ट करने के बाद हमारी फोर्सेस जो है वो वापस आ गई हैं। इसका मतलब है हमको किसी भी और सिविलियन या किसी
किसी और की जान माल के ऊपर हमने कोई नुकसान नहीं। अनिल जी, जरा हमें समझाने की कोशिश करिए, किस तरह से इस सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान किया गया होगा? सेना की ओर से किस तरह की प्लानिंग की गई होगी? किस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया होगा, जो अब तक समझ में आ रही है बात? देखिए, ऐसा है कि जो भी प्लानिंग की गई होगी उसका एक प्रोसीजर होता है, और मेरे ख्याल से इट वुड नॉट बी करेक्ट टू डिस्कस इट ऑन अ टेलीविजन। बिल्कुल, यहाँ पे डिस्कस करना जिसने के लिए ये जब पहली स्ट्राइक है, इसके बाद और भी स्ट्राइक होगी। तो इतना है कि उनको इंसर्ट किया गया है। कैसे इंसर्ट किया गया है? उन्होंने कार्रवाई करी और फिर उनको एक्सट्रीकेट कर लिया है। इसका मतलब है कि जो टोटल सरप्राइज हैज बीन अचीव एंड टोटल एम हैज बीन अचीव। अनिल जी, पाकिस्तान को क्या, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। RSN सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। RSN सिंह साहब, जिस बात का हमें इंतजार था, वो कड़ा संदेश पाकिस्तान को देने का वक्त हमें पता है आ गया था। भारत ने वो करके दिखाया है। आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए गए हैं बीती रात। देखिए, ये आखिरी जवाब नहीं है, लेकिन एक नई प्रतिक्रिया शुरू हुई है, और ये प्रतिक्रिया थोड़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, आज से कुछ साल पहले, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो चेंज हो गया है, और पाकिस्तान से, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री हो या उनके वो चमचे हो, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद या कोई हो, अब ये मैसेज चला गया है कि ये प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला ये अब हमेशा के लिए जारी नहीं रहेगा। और आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वक्त आया है। RSN सिंह साहब, क्या एक करारा तमाचा है ये पाकिस्तान के मुंह पर, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है पाकिस्तान, उस तरफ भी तेजी से कदम आगे बढ़े हैं। सार्क समिट कैंसिल हुई, उसके बाद भारत ने यह भी दिखा दिया है कि अगर तब भी आप नहीं माने, तब भी आप घुसपैठ करेंगे, तब भी हमारे देश पर के खिलाफ अगर आप साजिश रचने की कोशिश करेंगे, तो यह भी हमारा जवाब हो सकता है। देखिए, हिंदुस्तान की आवाम में जो एक रिलीफ का और एक फीलिंग है, वो उतना ही मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी होगा, क्योंकि ये पूरे, आप देखें, मतलब अगर मेरा असेसमेंट अगर हो तो पाकिस्तान दो मुल्कों के साथ अभी वॉर में है, वो है एक अफगानिस्तान और वो है एक इंडिया। तो हमने अपने जिम्मेदारी को इस तरह से हमने निभाने का जो कदम उठाया है, उससे पूरे जो हमारे जो रीजनल जो कंट्रीज हैं, जो कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी से बिल्कुल ऊब चुके हैं, उनका वो भी एक चैन की सांस आज लेंगे। और मैंने जैसा कि कहा कि एक नया रूल्स ऑफ एंगेजमेंट शुरू हुआ है, एक नई प्रतिक्रिया शुरू हुई है। बिल्कुल। RSN सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ, ये एक नई शुरुआत है, इसका अपना मोमेंटम होगा, इसके अपने फॉलो आउट्स होंगे। लेकिन ये तो जब कोई समस्या एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो आपको अपने लोगों को और अपने देश को महफूज रखने के लिए ऐसे अनिवार्य कदम उठाने पड़ते हैं, सख्त कदम। बिल्कुल। RSN सिंह साहब, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी बात RSN सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे देश पर टेढ़ी निगाहें की और अगर बातों से भी आप बाज नहीं आए, तो फिर भारत को यह कदम उठाना होगा, और वो करके दिखाया है। भारत ने बीती रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किए गए हैं। जो लॉन्च पैड्स थे उसमें आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, LOC के नजदीक बने हुए लॉन्च पैड से, और एक बड़े हमले की योजना भारत पर बनाई जा रही थी। और इसलिए भारत ने अब पाकिस्तान को दिखा दिया है कि पाकिस्तान में घुसकर आपको हम मारने का मादा रखते हैं। एडिटर क्राइम रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रवि, एक बड़ा ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया है, बहुत जरूरी
जरूरत भी थी शायद इस तरह के ऑपरेशन की, क्योंकि डिप्लोमैटिकली भारत ने इस चीज को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान उससे कुछ सीख पा रहा था, कुछ सबक ले पा रहा था, और इसीलिए उसे दिखाने की जरूरत थी कि अगर हमारे देश पर आप इस तरह की आतंकी साजिशें करेंगे तो आपका यह अंजाम होगा। बिल्कुल साफ कर दिया है भारत ने कि अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और कल रात मैं आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा कि जो हमले हुए थे कल, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है भारत ने, वो 3 जगहों पर किया है। ये एलओसी पर मौजूद है, भिम्बर, कोट स्प्रिंग और लिपा सेक्टर। इन 3 जगहों पर यह हुआ है। खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR जो एजेंसी है जो कि PR देखती है आर्मी का, उसने कबूल किया है कि रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लगातार फायरिंग हुई है भारत की तरफ से और फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ दोनों तरफ से। लेकिन ये आड़ देने के लिए था, उन्हें नहीं पता लगा, सुबह उनको इस बात का पता लग पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। आड़ देने के लिए फायरिंग की जा रही थी और इस बीच में वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। इन तीनों जगहों पर आतंकियों का लॉन्चिंग पैड था। बड़ी तादाद में यहां पर आतंकियों को नुकसान पहुंचा है और एक तरह से कहीं तो तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर, और बहुत जोरदार तमाचा है। बिल्कुल सुमित, ये समझाइए कि किस तरह भारत को ये जानकारी मिली थी, पुख्ता जानकारी। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि हमारे पास जानकारी थी कि भारत में एक बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है जिसके लिए आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में है, और उसके बाद आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि बस अब और बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, लगातार इन चीजों की जानकारी कई बार इनपुट्स मिले हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के या फिर कह सकते हैं खुफिया एजेंसीज के, जिसमें साफ तौर पर कहा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास कई ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जो लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा पिछले कई सालों में इस साल जो है इन्फ्लेटेशन कई ज्यादा बढ़ी है, 110 से ज्यादा, और करीबन 33 ऐसी इनकाउंटर्स हुए हैं, यानी टेररिस्ट मारे गए हैं जो LOC पे इन्फ्लेटेट करते हुए उसी समय जिनके पर कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर खुफिया एजेंसीज को खास ये जानकारियां मिल रही थी कि दोबारा उरी अटैक के बाद ये दोबारा से अटैक कर सकते हैं, कई और दूसरी जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। आपको याद होगा उरी के बाद कई जगहों पर स्पॉट्स पे हमारी जो आर्म फोर्सेज ने कई जगह अपने जो इनकाउंटर्स चलाए, जिसमें साफ तौर पर सामने आई कि घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, और जो गाइड 2 पकड़े गए, आपको याद होगा, जिन्होंने उरी अटैक के अंदर उन सभी 4 आतंकियों को घुसने की NIA उनसे इन्वेस्टिगेट करी है। उसमें भी कई इनपुट सामने निकल के आए हैं कि किस तरीके से वहां पर इन लोगों को पाकिस्तान आर्मी के स्पेशलाइज्ड फोर्सेज की तरफ से ये सारी ट्रेनिंग मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर भारत ने ना सिर्फ अपने सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक्स में चेंज किया, बल्कि यह भी दर्शाया है कि अगर इनपुट्स मिलते हैं और लगातार पाकिस्तान उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल रवि से हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से प्लान की गई होगी, किस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया होगा, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया होगा, वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने क्या बड़ी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का जो ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है, ये जानकारी DGMO ने दी है और कहा है कि सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके मददगारों को बहुत बड़ा नुकसान इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पहुंचाया। रवि, हमें समझाइए किस तरह से अंजाम दिया गया होगा सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक को। जीता ने उससे पहले जो आपने बात कही कि मददगारों को भी नुकसान पहुंचा है, तो पाकिस्तान की ISPR जो कि एजेंसी है, PR देखती है पाकिस्तानी आर्मी का, उसने कबूल किया है कि कल रात उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। क्या ये वही मददगार
है, क्या इस दावे की को पुख्ता नहीं करता है ये बात? बहरहाल जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बिल्कुल। रवि, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वीएन थापर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। वीएन थापर साहब, बड़ी बात जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीती रात भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक किए गए हैं। समझना चाहेंगे किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किए गए होंगे और आतंकियों को निशाना बनाया होगा भारतीय सेना ने? देखिए, अब सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल साफ है कि अब पहली बार सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जैसे समझते हैं सिचुएशन को उसके मुताबिक करिए, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है सेना सतर्क है और नाइट विजन डिवाइसेस उनकी मदद से जो रात के अंदर हम अच्छी तरह देख सकते हैं, उसकी मदद से कोई घुसपैठ करने का मंसूबा कोई भी बनाएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कामयाबी हुई है और मेरे हिसाब से अगर कोई भी और अटेम्प्ट हुई तो उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। एक नहीं, 3 जगह पे कोशिश की गई है और 3 जगह पे एक्शन हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल खबरें आएंगी और जानने का मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दिया जाए और उसके लिए हमें फ्री हैंड दिया गया है। बिल्कुल, उस दिशा में हमने पहला बड़ा कदम उठा लिया है। थापर साहब, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं।